Greetings everyone. This lecture we are going to study even and odd signals, periodicity of the signal. Let's begin with the even signal. Even signal is a defined signal for which x of t is equal to x of minus t. This means that whatever the value of the signal at t1 second, the value at minus t1, whatever value at t2 second, same value will be at minus t1 signal. Odd signal, for odd signal xt minus of, that means whatever value at t1 second, the minus t1 second value will be negative of that value. For example, at t1 second the value is 5, so at minus t1 second the value will be minus 5. For example, we have seen cos omega t. Cos omega t, for cos omega t, you know cos of minus theta equal to minus omega equal to cos. So it means that cos omega t is an even signal, and x of t equal to sin omega t. Here if we put minus t, x of, so sin minus omega t equal to minus sin omega t, because from trigonometry we know that sin of minus theta equal to minus sin theta. So sin omega t is an example of an odd signal, and cos omega t is an example of an even signal. So the average or mean of DC value or DC value of any odd signal is always 0. Okay, as you can see, if you see, take the mean or average value of an odd signal, the value will be 0 because all the values will be cancelled out. For example, at t1 the value is 5, and at minus t1 the value will be minus 5. If you add both, plus 5 and minus 5 will be equal to 0, and this same thing will happen for every time instant, and the value of odd signal at origin is 0. Okay. For a signal to be odd, it's a compulsory requirement that its value at the origin must be 0. Why? Because if you put here x of t equal to minus of x, so x of 0 should be equal to 0. Now any signal can be represented as a sum of a even signal and an odd signal. We have any signal xt, we can represent xt as summation of its even part plus odd part. Now we have to find what will be those even parts and odd parts. So x of minus t, if you put in equation number 1 minus t, then x of minus t will be equal to x plus x minus t, where xe is the even part and xo is the odd part. So here we can write, as we know, as we already just now defined, the even part, for even part xe of minus t will be equal to xe of t because it's even part, and for odd part xo of minus t will be equal to minus of xo of t because it is odd part. So x of minus t will be equal to xe minus xo of t. This is the equation number 2, and from these two equations we can derive what is xe of t. So suppose if we add these two equations, xo
term will get cancelled out and we will get xe of t, that is even part of the signal xt, is equal to xt plus x of minus t divided by 2. Similarly, for getting odd part, we'll have to subtract these two equations. Then we will get xo of t is equal to xt minus x of minus t divided by 2. यहाँ हमने डेरिवेशन किया है इवन पार्ट और ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल। तो आपको कोई भी सिग्नल दिया जाए और उसका पूछा जाए इवन पार्ट निकालो, तो आप क्या करोगे, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे सामने एक सिग्नल है एक्स टी, इस सिग्नल, ये सिग्नल फॉर माइनस टी के लिए कांस्टेंट था 2, फिर पॉजिटिव टी के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन तरह इंक्रीज कर रहा है और 1 पे इसकी वैल्यू 3 है। स्ट्रेट लाइन। नाउ अब इसका इवन पार्ट आपको निकालना है। इवन पार्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस डिवाइडेड बाई 2। जनरली ग्राफिकल मेथड से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना काफ़ी आसान होता है। तो आपको कोई इक्वेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको ग्राफिकल मेथड, एक्स टी हमारे पास है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमने एक्स ऑफ माइनस टी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और एक्स ऑफ माइनस टी के लिए हम इसको टाइम रिवर्सल ऑपरेशन इसको लगा के बस एक्स ऑफ माइनस टी हमको मिल जाए। फिर हमको दोनों को ऐड करना है और दोनों को ऐड करने पे जो सिग्नल आएगा उसको हमने नाम दिया एक्स डैश ऑफ टी। तो अब इन दोनों सिग्नल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी 2 प्लस जो स्ट्रेट लाइन है का वैल्यू में जितना वैल्यू आ रहा था, मान लो 3 आया है यहाँ -1 पे, तो अब 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 उसमें ऐड होता जा रहा है। ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और -1 पे उस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगी, और t इज इक्वल टू 0 पे 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली एट +1 पे भी वैल्यू 5 होगी, तो x डैश t हमारे पास यहाँ पर आ गया इसकी आर्ग्यूमेंट। तो और कोई ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें केवल 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। ओके, तो नेगेटिव साइड में हमारे पास 2 पॉइंट कौन कौन से थे, t इज इक्वल टू 0 पे हमको पता था कि इसकी वैल्यू है 4 एंड t इज इक्वल टू -1 पे हमको पता है इसकी वैल्यू है 5, तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली फॉर पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव t, वी नो दैट t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू है 4 एंड t इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू है 5, तो अगेन हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर हमको ये x डैश t मिल गया। अब इसका इवन पार्ट निकालने के लिए हमको केवल इसको 2 से डिवाइड कर देना है। जो जो भी वैल्यू थी हमारी 4 की जगह अब 4/2 हो जाएगी और 5 की जगह 5/2। तो इस तरीके से हम इवन पार्ट सिग्नल का निकाल लिए। सिमिलर इसी मेथड से हम इसका ऑड पार्ट भी निकाल सकते हैं। ऑड पार्ट के लिए हमको दोनों को ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिमिलर एनालिसिस से हम इसका ऑड पार्ट भी, यहाँ सब इम्पोर्टेंट पॉइंट सब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इवन पार्ट और ऑड पार्ट दोनों को ऐड कर रहे हैं, इवन कोई इवन सिग्नल प्लस ऑड सिग्नल को अगर ऐड करेंगे तो जो सिग्नल होगा वो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। अगर हम कोई 2 इवन सिग्नल को ऐड करेंगे तो हमेशा कोई इवन सिग्नल आएगा आपके पास। सिमिलरली इफ यू ऐड 2 odd signals then the result will be an odd signal। तो अगर 2 इवन सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन सिग्नल आएगा, और लेकिन 2 odd सिग्नल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इवन सिग्नल आएगा। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे सेम सिंपल रीज़न है कि जब माइनस साइन होगा, सपोज हम लेते हैं कोई सिग्नल x1 ऑफ t का एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं। हम लेते हैं सिग्नल x1
x2, दोनों ओड सिग्नल है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये मल्टीप्लाई का रिजल्ट मान लो, सपोज हम अज्यूम करते हैं तो भी सिग्नल आएगा मल्टीप्लिकेशन, वो सिग्नल इक्वल टू वाई टी, इसको अज्यूम करते हैं वाई टी इक्वल टू x1t मल्टीप्लाइड बाय x2t। तो नाउ y ऑफ माइनस टी क्या होगा, माइनस टी के लिए दोनों के आगे बस हम माइनस टी की जगह माइनस पुट कर देते हैं, तो y ऑफ माइनस टी होगा x ऑफ बाय x ऑफ, that will be equal to y of माइनस टी। ओके, तो अब यहाँ पर x1 ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x1t। ओके, क्योंकि ये ऑड सिग्नल है, माइनस ऑफ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x2 ऑफ माइनस टी भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x2 ऑफ t, एंड दिस होल मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू y ऑफ माइनस टी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो y ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू x1t मल्टीप्लाइड बाय x2t विच इज इक्वल टू y ऑफ t। दैट मीन्स if you multiply two odd signal, the result will be an even signal. Similarly, if you multiply an odd signal with an even signal, then the result will be an odd signal with the similar analysis। इस तरीके से आप ये सारे रिजल्ट आसानी से डिराइव कर सकते हैं। आपको बस दो सिग्नल अज्यूम कर लेने हैं, एक ऑड सिग्नल को अज्यूम कर लो, एक इवन सिग्नल को अज्यूम कर लो, और रिजल्टिंग सिग्नल को कुछ नाम दे दो, और फिर उसके बाद में उसमें टी की जगह माइनस टी रिप्लेस करके आपके सारे रिजल्ट आप ड्राइव कर सकते हैं। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ एन ऑड सिग्नल, ऑड सिग्नल को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इवन सिग्नल आएगा। ओके, एंड जब इवन सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑड सिग्नल आए। ये क्यों आया, ये कैसा है, इसको अगर आपको डिराइव करना है, समझना है, सिंपल लॉजिक आप इसको समझ सकते हैं सिंपल लॉजिक से। सपोज कोई सिग्नल है, ये सिग्नल है, अब किसी एक पॉइंट पे आप इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हो। ओके, तो मान लो ये T2 है, T1 है, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होगा, x ऑफ T2 माइनस x ऑफ T1 divided by T2 minus T1. This will be the value of differentiation, say at point T point पे हम उसका डिफरेंशिएशन, तरीके से वो डिफरेंशिएशन कुछ आएगा। नाउ अगर वो सिग्नल ऑड है, ऑड सिग्नल के लिए जो वैल्यू x ऑफ T1 होगी माइनस T1 पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दैट वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली T2 के लिए भी वो वैल्यू माइनस हो जाएगी। ओके, तो अगेन वो सेम फॉर्मूले में आपको T की जगह माइनस T आप रिप्लेस करेंगे, तो उससे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी एन इवन सिग्नल। ओके, तो यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। आप बस d/dt कुछ लिखना है, d/dt ऑफ से xt तो आपको इस फॉर्म में लिखना है कि इज इक्वल टू x ऑफ T2 प्लस x ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T1। और इसी इक्वेशन में आपको t की जगह माइनस t हर जगह पुट, और वहाँ से फिर आपको ये सर इसका समझ में आ जाएगा T1 कैसे। यहाँ पर अगर ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, तो बाकी के सारे रिजल्ट भी सिमिलर रहेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड सिग्नल इज एन इवन सिग्नल, so by similar argument we can say that differentiation of even signal will be equal to odd signal।
बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है डीसी का। डीसी सिग्नल है वो भी आपका एक तरीके का इवन सिग्नल है। डीसी सिग्नल है कोई कांस्टेंट सिग्नल, ये 5 है कौन, तो इसके लिए भी हमेशा x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी, क्योंकि ये तो सब जगह इक्वल है। दैट मीन्स द डीसी सिग्नल इज एन इवन सिग्नल। लेकिन यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ इवन सिग्नल विल बी इक्वल टू ऑड सिग्नल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल सिग्नल, ऑल इवन सिग्नल, बट एक्सेप्ट फॉर डीसी सिग्नल। Similarly, if we integrate, integration of even signal will be an odd signal, and integration of odd signal will be an even signal. So this, and reciprocal of an even signal will be even signal only, and reciprocal of odd signal will be odd. These were some important points that you should remember, and in fact you don't need to remember them, you can directly derive them also. Just you need to assume any signal, then put minus t in place of t, and then so now let's discuss the next topic, which is the periodic and non-periodic या फिर aperiodic signal. पीरियोडिक कब होगा तो उसका पीरियड क्या होगा, और कब वो पीरियोडिक नहीं होगा। तो एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एन इंटू टी नोट। फॉर एनी पीरियोडिक सिग्नल वी कैन से दैट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एन इन टी नोट। मतलब कि ये कोई एक वैल्यू ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। कोई भी सिग्नल एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम के बाद अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है, देन दैट सिग्नल इज पीरियोडिक सिग्नल। हियर n इज एन इंटीजर and t naught is the fundamental time period. That is, t naught is the smallest positive value of time after which the signal repeats itself. t naught क्या है, जो fundamental time period है उसका, मतलब smallest value of time है after which the signal repeats itself. For example, cos omega t जो है सिग्नल आपका, that is a periodic signal. लेकिन अगर आप cos ओमेगा टी को केवल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी के लिए लिख रहे हो, तो इस तरीके का जो सिग्नल होगा वो आपका ए पीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिक सिग्नल होता है उसमें हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वो पूरा टाइम एक्सिस हर वैल्यू पे उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, तभी हम उसको पीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो उसको हम पीरियोडिक बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। The signal is periodic, then it should be periodic for entire time. तो 1/t नोट जो है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब फंडामेंटल टाइम पीरियड 1/t नोट विल बी इक्वल टू f नोट। f नोट इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये डेफिनेशन हुआ एक फॉर्मल डेफिनेशन किसी सिग्नल के पीरियोडिक होने का। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन जो है उसको डिस्कस करना जरूरी है, दैट इज द डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल के बारे में हम कैसे उसको समझें, डीसी सिग्नल पीरियोडिक है या अपीरियोडिक। डीसी सिग्नल यहाँ पर एक कांस्टेंट सिग्नल हमने अज्यूम किया है एक्स टी इक्वल टू 5। नाउ ये हर जगह इसका वैल्यू 5 है, तो अब इसको ये तो रिपीट तो कर रहा है अपने आप को, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू। तो अब इसको कैसे हम रिजोल्व करें। इशू को रिजोल्व किया जाता है कि ये हम मानते हैं कि डीसी सिग्नल आर पीरियोडिक सिग्नल विद अनडिफाइंड फंडामेंटल टाइम पीरियड। बोलते हैं कि डीसी सिग्नल जो है पीरियोडिक है, लेकिन इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड आप डिफाइन नहीं कर सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। अब फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी के लिए हम अज्यूम करते हैं सपोज एक्स टी इक्वल टू सी नोट।
तो सी नोट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी नोट इक्वल टू लिमिट ओमेगा नोट टेंस टू 0 सी नोट मल्टीप्लाइड बाय कोस ओमेगा नोट टी। तो ये जो सिग्नल है सी नोट मल्टीप्लाइड बाय कोस ओमेगा नोट टी, इस सिग्नल का जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो है ओमेगा नोट। अब इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अगर टेंस टू 0 हो जाए तो ये सिग्नल विल बी इक्वल टू सी नोट। So based on this argument we are saying that the frequency of DC equal to 0। फ्रीक्वेंसी इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 0 है और इसका जो टाइम पीरियड है वो अनडिफाइंड है। तो जो टी नोट इक्वल टू 1 बाय एफ नोट जो है वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर डीसी के केस में अप्लाई नहीं होगा। इसका टाइम पीरियड अनडिफाइंड है लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी को 0 मानते हैं बेस्ड ऑन दिस आर्ग्यूमेंट। अगेन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सम ऑफ 2 और मोर पीरियोडिक सिग्नल will be periodic if ratios of their fundamental time period if the ratios of their fundamental time period is rational। okay, so sum of 2 or more periodic signal will be periodic if ratios of their fundamental time periods are rational। अगर कोई दो सिग्नल है का एडिशन तो रिजल्टिंग सिग्नल वो पीरियोडिक होगा या एपीरियोडिक। अगर उन दोनों सिग्नल के जो पीरियड्स हैं रेशो रैशनल है, रैशनल पर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड टर्म्स ऑफ p by q known as a rational where p and q are तो अगर वो रेशो उनका रैशनल हुआ तो उसको हम वो पीरियोडिक सिग्नल माने। ओके, फॉर एग्जांपल अब दो सिग्नल है का पीरियड कुछ ना कुछ अलग है, सपोज किसी का t1 है किसी का t2 है, दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग सिग्नल आएगा उसका क्या पीरियड होगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज जाने की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, आप हर दूसरे दिन कॉलेज जाते हैं, आपका कोई फ्रेंड है जो हर चौथे दिन कॉलेज जा रहा है। अब आप दोनों के कॉलेज जाने की क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब आप दोनों जो है हर चौथे दिन कॉलेज जा रहे हो। ये एक सिंपल एग्जांपल। अगर मान लो कि आप हर दूसरे कॉलेज जा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है वो हर 5वें दिन कॉलेज जा रहा है, तो आप दोनों के कॉलेज जाने की आप दोनों कॉलेज कब जा रहे हो, कब आप दोनों साथ में कॉलेज, जब आप हर दूसरे दिन जा रहे हो और आपका फ्रेंड हर 5वें दिन। तो उस केस में आप देखेंगे कि आपका जो फ्रीक्वेंसी कॉलेज जाने का वो रहेगा हर 10वें दिन, हर 10वें दिन आप दोनों कॉलेज जा रहे हो। इसी आर्ग्यूमेंट से हम यहाँ पर इस तरीके से आप दो सिग्नल्स को ऐड करने के बाद उसका जो फंड आएगा वो कैसे, हियर xt इक्वल टू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, और x1t जो सिग्नल है उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है t1 फंडामेंटल, और x2 जो है उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड और फंडामेंटल f2। तो जो t नोट होगा मतलब xt का जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू LCM ऑफ t1 2। यहाँ और सिग्नल होते तो उनके भी सारे टाइम पीरियड का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता वो आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड हो जाता। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ये बात ध्यान देने की। डिस्क्रीट के लिए 90% एनालिसिस सिमिलर है, बस वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो फंडामेंटल टाइम पीरियड आएगा वो भी आपका डिस्क्रीट टाइम ही होना चाहिए। के लिए अभी आगे हम देखेंगे के लिए कैसे, लेकिन अगर कंटिन्यूस टाइम है पीरियड तो दो सिग्नल के एडिशन के पीरियोडिक होने का
सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो रेशो है फंडामेंटल टाइम वो रैशनल होने चाहिए। अगर रेशो इरेशनल है तो आपको आगे चेक करने की नहीं है, आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हो कि ये जो सिग्नल होगा सिग्नल विल बी ए पीरियोडिक सिग्नल। लेकिन अगर रेशो उनके रेशनल है तब आप उसका पीरियड निकालना है, तो उसका टी नोट निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा सारे सिग्नल फंडामेंटल टाइम पीरियड का, या फिर आप एफ नोट निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली एफ नोट निकालना है इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 1 को, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए एच सी एफ निकालना होगा सारी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज का, एंड फंडामेंटल टाइम पीरियड के लिए एलसीएम निकालना होगा सारे फंडामेंटल टाइम पीरियड्स का। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल सिग्नल एक्स टी इक्वल टू ए नोट ई टू पावर जे ओमेगा नोट टी इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, और इस सिग्नल का हमको फंडामेंटल पीरियड निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन करने के बाद अगर एक बार आपको फॉर्मूला पता चल गया तो आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? आइलर्स आइडेंटिटी टू द पावर जे ओमेगा इक्वल टू cos ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी। इस सिग्नल को हम आइलर्स आइडेंटिटी इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन के हम तो इसका टाइम पीरियड फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है एक्स टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी नोट, दैट मीन्स ए नोट ई टू द पावर जे ओमेगा नोट टी विल बी इक्वल टू ए नोट ई टू द पावर जे ओमेगा नोट टी प्लस टी नोट। यहाँ पर दैट मीन्स ए इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा नोट टी इज इक्वल टू ए नोट ई टू द पावर जे ओमेगा नोट टी मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर जे ओमेगा नोट टी नोट। नाउ a इंटू ए नोट मल्टीप्लाइड बाई टू द पावर जे ओमेगा नोट टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका इक्वेशन से, ये दोनों। दैट मीन्स टू द पावर जे ओमेगा नोट टी नोट इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन का यूज करके आपको टी नोट का फॉर्मूला निकालना है। 1 जो है दैट 1 इज इक्वल टू द पावर जे 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई के, ट्रिग्नोमेट्री से ऊपर जो लिखा है फॉर्मूला बताइए इसकी वैल्यू 1 कब होगी? इसकी वैल्यू 1 होगी जब ओमेगा नोट इंटू नोट इंटू टी नोट की वैल्यू जब 2 पाई इंटू के होगी, तभी इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। इज एन इंटीजर, तो नोट टी नोट इक्वल टू 2 पाई के, टी नोट इक्वल टू 2 पाई अपन ओमेगा टी नोट, क्योंकि स्मॉलेस्ट होना चाहिए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू थ्री फोर के इक्वल टू 1 के लिए इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो टी नोट इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा नोट। तो ये फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा सिग्नल जो था हमारा नोट इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा नोट टी का। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो होगा उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने का ये तरीका है। तो ये सिमिलर फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर एनी साइनोसॉइडल। ठीक है, यहाँ पर ये बेसिकली क्या था, दो साइनोसॉइडल सिग्नल का एडिशन ही था, उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम, फंडामेंटल टाइम फ्रीक्वेंसी। ये जो फॉर्मूला है फॉर एग्जांपल एक्स टी इक्वल टू साइन 2 पाई टी, तो इसके लिए जो है साइन 2 पाई टी मतलब क्या है, ओमेगा नोट क्या होगा यहाँ, ओमेगा नोट विल बी इक्वल टू 2 पाई। कि जनरल जो फॉर्म होती है साइन की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल साइन
का नोट इंटू टी होता है जनरल। यहाँ पर ओमेगा नोट की जगह क्या है 2 पाई, दैट मीन्स 2 पाई इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। का नोट पता चल गया तो फंडामेंटल टाइम पीरियड डायरेक्टली हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट करेंगे तो 2 पाई अपॉन 2 पाई दैट इज 1 सेकेंड आएगा इसका आंसर। दैट मीन्स द सिग्नल विल बी रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे रिपीट कर रहा है इसका मतलब 2 सेकेंड बाद भी रिपीट करेगा ही, लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड आपका 1 सेकेंड को स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। अनदर एग्जाम्पल एक्स टी इक्वल टू साइन स्क्वायर 4 पाई टी। यहाँ पर इस सिग्नल का आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई फॉर्मूला का यूज़ करके हमने यहाँ साइन स्क्वायर 4 पाई टी को हमने इक्वेट कर दिया 1 माइनस कोस ऑफ 8 पाई टी डिवाइडेड बाय 2। तो हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस कोस ऑफ 8 पाई टी डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो सिग्नल है डीसी प्लस एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो डीसी को हम इग्नोर करेंगे और साइनोसॉइडल सिग्नल है कॉस ऑफ 8 पाई टी का ओमेगा नोट क्या होगा 8 पाई। तो अगेन वो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, टी नोट इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो उससे आ जाएगा टी नोट इक्वल टू 1/4 सेकेंड। तरीके से आप किसी सिग्नल का नाउ अगर दो सिग्नल को हमने ऐड किया है, दो सिग्नल है, सिग्नल 1 का साइन 4 पाई टी प्लस कॉस ऑफ 2 टी को ऐड किया है, तो पहले सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड सॉरी फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी था ओमेगा 1 इक्वल टू 4 पाई, के लिए ओमेगा 2 इक्वल टू 2 है। ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 करेंगे तो क्या आ रहा है 2 पाई, दैट इज एन इरेशनल, पाई जो है इरेशनल नंबर। दैट मीन्स दैट दोनों का रेशियो जो है टाइम पीरियड का भी रेशियो आपका इरेशनल ही आएगा, और T1 निकालोगे तो भी T2 का भी रेशियो। सिग्नल XT इज एन एपीरियोडिक सिग्नल, सिग्नल XT एपीरियोडिक है इवन दो इट इज सम ऑफ 2 पीरियोडिक सिग्नल, मतलब सम ऑफ 2 पीरियोडिक सिग्नल और मेन पीरियोडिक सिग्नल। तो ये तो पीरियोडिक सिग्नल ने अभी तक ज़्यादातर डिस्कस किया है कंटिन्यूस टाइम के लिए, लेकिन अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम के लिए हम कैसे उसका, तो डिस्क्रीट टाइम के लिए आपका जो सेम है बेसिकली एक्स ऑफ एन शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पर जो सिग्नल है कैपिटल एन के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, तो दिस कैपिटल एन इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड, के मल्टीपल्स के बाद भी अपने आप को रिपीट करेगा, तो उसको हम एम इन कैपिटल एन लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन इक्वल टू एम मल्टी। तो अब डिस्क्रीट सिग्नल अगर पीरियोडिक है तो कैसा दिखेगा, इसका एग्जांपल ये है, यू कैन सी एक्स ऑफ एन जो है यहाँ पर का जो फंडामेंटल पीरियड है दैट इज इक्वल टू 3। ओके, सपोज 0 1 2, 0 पे इसकी वैल्यू 1 थी, पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 1/2 कुछ है। तो हर एक ये सिग्नल जो है एन नोट इक्वल टू 3 के लिए पीरियोडिक है। आफ्टर t is equal n नोट n इक्वल टू 3 इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब जो x ऑफ 0 है विल बी इक्वल टू x ऑफ 3, x ऑफ 1 जो है दैट विल बी इक्वल टू x ऑफ 4। तो अब इसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का, फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है सिग्नल n इक्वल टू साइन ओमेगा नोट, सिग्नल का हमको फंडामेंटल
निकाल, तो एक्स ऑफ एन इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, लेकिन यहाँ स्मॉल एन की जगह हम प्लस कैपिटल जाएगा आपका साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन प्लस कैपिटल एन. Now we know that sine of 2 pi m plus theta equal to sine theta. That means omega naught into capital N should be equal to 2 pi into m. Now capital N is equal to capital N क्या आएगा आपका 2 pi अपन ओमेगा नॉट इंटू, तो यहाँ पर जो कैपिटल N आएगा वो आपका डिस्क्रीट टाइम होना चाहिए. डिस्क्रीट टाइम मतलब ये इसका वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा कुछ होना चाहिए. इसका वैल्यू ऐसा नहीं हो सकता कि 1/2 3/4 ऐसा कुछ वैल्यू नहीं हो सकता. दैट मीन्स द वैल्यू शुड होल नंबर जो है वो कोई होल नंबर होना चाहिए. तो उसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो है वो क्या है कि 2 पाई अपॉन जो ओमेगा नॉट, अगर ये रेशनल है, क्योंकि जो m यहाँ पर लिखा हुआ है m इंटीजर वैल्यू, m तो आपका इंटीजर है. अगर ये 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट इरेशनल हुआ तो n भी आपका इरेशनल. तो डिस्क्रीट के लिए इरेशनल टाइम पीरियड का कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं रहेगा. तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो अगर ये 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट जो है ये रेशियो अगर इरेशनल है, दैट मीन्स द सिग्नल इज ए पीरियोडिक. अगर ये जो रेशियो है रेशनल है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, m की ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जिसके लिए n जो है होल नंबर आए आपका और उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट हो. तो भी हम एक एग्जांपल आगे एग्जांपल से कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, जरूरी नहीं है साइन ओमेगा नोट n जो है पीरियोडिक हो. स्किट के केस में साइनोसॉइडल सिग्नल जो होगा वो हमेशा पीरियोडिक हो, ये जरूरी नहीं है. डिपेंड करेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट का जो अगर रेशो है वो रेशनल है तो ही वो आपका पीरियोडिक होगा, अदरवाइज ए पीरियोडिक. एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले एक्स ऑफ एन इक्वल टू कोस पाई 4 इंटू एन. यहाँ पर ओमेगा नोट जो है वो है पाई 4. तो कैपिटल एन का जो फॉर्मूला अभी हमने देखा है 2 पाई अपन ओमेगा नोट, 2 पाई में डिवाइड करेंगे पाई 4 का, क्या आ जाएगा 8 इंटू एम. तो एन का वैल्यू क्या आएगा 8 होगा. एम की एम इक्वल टू 1 हम पुट कर देंगे जिससे कि एन का वैल्यू हमारे पास स्मॉलेस्ट होल वैल्यू होल नंबर आ जाए. 8 से छोटा एन का वैल्यू नहीं हो सकता था क्योंकि एम यहाँ पर इंटीजर है. एम की जगह आप 1/2 ऐसा कुछ पुट नहीं. एक्स ऑफ एन इक्वल टू कोस ऑफ 15 पाई डिवाइडेड बाय 8 इंटू. ओके, तो सिग्नल के लिए एन क्या आएगा अगेन 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या करेंगे ओमेगा नॉट विच इज 15 पाई डिवाइडेड बाय 8. 2 पाई डिवाइडेड बाय 15 पाई बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय एम, 16 डिवाइडेड बाय 15 इंटू एम. यहाँ पर अब एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा 16. ओके, और एम इक्वल टू 15. इस तरीके से आपको बस एन का होल नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल. नाउ सी एक्स ऑफ एन इक्वल टू कोस 4n 4 इंटू एन. हियर n इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू एन. नोट क्या है 4 है यहाँ पर. अब यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 जो होगा क्या होगा पाई 2. पाई 2 आपका इरेशनल. अगर पाई 2 ए पीरियोडिक सिग्नल cos 4n है, that will be ए पीरियोडिक तरीके से. तो पीरियोडिसिटी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. इसमें बस जो डिफरेंस है वो, तो लेक्चर में इतना. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट सिमेट्री के बारे में एंड पावर सिग्नल के बारे में.
Thank you very much.